morning, class 11th. Today we are going to discuss question number 1 to 6 of miscellaneous exercise of chapter 2, that is relation and function. Question number 1. The relation f is defined by fx is equal to x square upon 3x, where the value of x must be greater than equal to 0 and less than equal to 3, and function will be 3x when the value of x will be greater than equal to 3 and less than equal to 10. The relation g is defined by gx is equal to x square upon 3x when the value of x is greater than equal to 0 and less than equal to 2, and 3x will be the function when the value of x will be greater than equal to 2 and less than equal to 10. Show that f is a function, g is not a function. In this question you have given two functions, a function fx, two relation fx and a relation gx. Now what you have to do, you have to show that fx is a function whereas gx is a relation. Finding value of fx and gx for different values of x. Let's start our question. Fx is equal to x square upon 3x. You have the value of x and fx. Now start putting values, different values. On putting 0 you will get 0, 1, 1, 2 you will get 4. On putting 3 you will get 9. On 4 you will get 12 and 10 you will get 30. Therefore for 0 greater than equal to x less than equal to 10 there is a unique fx. आपके पास सबके लिए एक अलग अलग fx आ रहा है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो किसी के लिए सेम हो. दैट मीन्स डोमेन और रेंज को अगर आप देखेंगे तो डोमेन सारे के सारा डिफरेंट है और मैप कर रहा है, तो सबके लिए क्या है, एक यूनिक इमेज आ रही है, तो इसका मतलब fx क्या हो जाएगा, आपके पास एक फंक्शन हो जाएगा. नाउ द फंक्शन इज gx. नाउ स्टार्ट पुटिंग वैल्यू. ऑन पुटिंग 0 you will get 0. On putting 1 you will get 1. On putting 2 x square when it is value of x will be greater than equal to 0, so x square you will get 4, and on putting in the function 3x you will get 6. Now the next value is 3. 3 is a 9. On putting 10 you will get 30. You can see 4 and 6. The element 2 correspond to two different images, 4 and 6. आपकी जो element 2 है उसकी दो इमेज निकल के आ रही हैं, 4 और 6, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. आपके पास यहाँ पे सेम इमेज हो सकती है, कहाँ पे, उसके रेंज में, लेकिन डोमेन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए. लेकिन यहाँ तो डोमेन सेम जा रहा है, तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा. हुआ क्या बेसिकली, आपके पास डोमेन था, रेंज थी, फंक्शन था एक्स स्क्वायर और 3x. आपने रखा 0, 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक, 10 तक रख सकते हैं आप. यहाँ पे रेंज जो है आपके पास उसमें क्या है, उसमें भी सेम वही है. आप जब 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा. 2 इसमें भी पुट होगा क्योंकि आपको जो कंडीशन दे रखी है वो एक तो दे रखी है एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू किससे, 2 से, और एक दे रखी है अगर 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू तो कौन सा हो जाएगा, 3x. तो अगर 3x में रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6. 2 4 को भी मैप करेगा, 2 6 को भी मैप करेगा. ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है एक फंक्शन में, इसीलिए ये वाला फंक्शन आपका एक रिलेशन है, एक फंक्शन नहीं होगा. तो gx विल बी अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. fx is equal to x square. Find f 1.1 minus f1 1.1 minus 1. First find out f 1.1. Now put the value of 1.1 in the given function. So 1.1 का square you will get 1.21. On putting f1 you will get 1. Now put all the values in the given question. f 1.1 is 1.1 का square minus 1 का square, 1.1 minus 1 you will get 1.21 minus 1, 1.1 minus 1 you will get 0.21 upon 0.1. On solving you will get 2.1. Question number third. Find the domain of the function. Now you have to find the domain of the given function.
फैक्टराइज इट, जो गिवन क्वेश्चन आपके पास है कोशिश करिए उसे फैक्टराइज करके इजी करने की। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर हो रखा है। तो यहाँ पे एक जगह आपके पास x है, b की जगह पे 1 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नाउ अगर आप डिनोमिनेटर को देखेंगे यहाँ पे है 12, यहाँ है -8x। ये किसी का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, बट अगर हम ब्रेक करें 12 को तो 2 6 12 करके हम इसे क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। आपने फैक्टराइज किया, आपका फैक्टर निकल के आ गया x-6 x-2। इन रियल नंबर द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो। अगर आपको कोई रियल नंबर चाहिए तो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हुआ तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा आपके पास। तो आपको क्या होना चाहिए, x-6 और x-2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू ना तो 6 आए और ना ही 2 आए। तो जो डोमेन होगा रियल नंबर्स का, उस जो डोमेन होगा किस गिवन फंक्शन का, वो सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट 2 and 6, because on putting 2 and 6 here you will get 0 in denominator which is not correct। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वो नंबर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिन नंबर से ये 0 बन के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय। आपके पास यहाँ पे डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए दी गई है किसी रियल फंक्शन की। फंक्शन क्या है, √x-1। आपके पास फंक्शन दे रखा है, वैल्यूज़ आपने पुट करी फंक्शन में, पहले रखी x2, तो ये हो जाएगा 2 - 1 यू विल गेट √1 दैट इज़ 1। फिर आपने रखा 1, तो 1 - 1 यू विल गेट 0। नाउ आपने पुट किया 0 यू विल गेट -1 रखने पे -2 और -2 रखने पे -3। तो क्या ये आपके पास रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर, लेकिन बाकी जो माइनस आ रहे हैं तो वो आपके पास रियल नंबर नहीं होंगे। तो f(x) इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, f(x) तो क्या आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) की क्या है, 0, और मैक्सिमम क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो डोमेन होगा शुड बी एटलीस्ट 1, वो कम से कम 1 होना चाहिए, और जहाँ तक जा सकता है इन्फिनिटी तक। तो डोमेन में आप स्टार्टिंग 1 से करेंगे और जाएंगे इन्फिनिटी तक, क्योंकि अगर आप नेगेटिव पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पे रूट माइनस में आ रहा है, अगर 0 पुट कर रहे हैं तब भी माइनस में आ रहा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि डोमेन में जो वैल्यू होनी चाहिए या तो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, और कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक। और जो f(x) है, जो उसकी रेंज है, उसमें कम 0 आ सकता है या उससे ऊपर कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो रेंज कहाँ से हुई, 0 से इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। यू हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। फंक्शन क्या दे रखा है, mod x-1। आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करी 2, यू विल गेट 1, ऑन पुटिंग 1 यू विल गेट 0, 0 रखने पे 1, -1 रखने पे 2 और -2 रखने पे 3। सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं और सारे वैल्यूज़ क्या होंगी आपके पास, रियल नंबर होंगे। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी कि जो फंक्शन है उसमें या तो 0 आ रहा है या 0 से बड़ी कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, जबकि आपने यहाँ पे जो नंबर पुट करे थे x में वो नेगेटिव भी थे पॉजिटिव भी थे। इसका मतलब जो इसका डोमेन होगा उसमें आप कोई भी रियल नंबर्स पुट कर सकते हो, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 हो, कुछ भी हो। तो डोमेन में आपके पास आ गए रियल नंबर्स। और दूसरी तरफ आपकी रेंज की बात करें तो रेंज में 0 आएगा या कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जब हमने पुट किया कोई नेगेटिव नहीं आया, तो इसका मतलब रेंज में क्या है, सिर्फ नेगेटिव नंबर नहीं छोड़ के सिर्फ पॉजिटिव नंबर है। तो रेंज इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो आपके पास रेंज में क्या होगा, 0 होगा या सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, f इज इक्वल टू x, x² अपॉन 1 + x² वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी ए फंक्शन फ्रॉम r इंटू आर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ r f। आपको यहाँ पे रेंज फाइंड करनी है f की, और कहाँ से, इन्होंने बोला कि रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग हो रही है। फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे डोमेन दे रखा है, रेंज, क्योंकि यहाँ देखिए कॉमा दे रखा है, तो ये फंक्शन को f(x) में समझिएगा, ये डोमेन और रेंज है। सबसे पहले आपने डोमेन में पुट किया 2, आपके पास रेंज आई 0.8, आपने पुट करा 1 यू विल गेट 0.5, देन पुट 0 यू विल गेट 0, ऑन पुटिंग -1 यू विल गेट 0.5, ऑन पुटिंग -2 यू विल गेट 0.8। आपने देखा कि जो जो वैल्यूज़ आप पुट कर रहे हो आपने रियल नंबर्स पुट करे, सारे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, 0 है, सब कुछ पुट किया, लेकिन जो आंसर निकल के आ रहा है वो जो वैल्यू है वो या तो 0 है मिनिमम, या 0 से लेकर के 1 के बीच में है, कहीं भी आपके पास 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आई। आप कुछ भी पुट करके देख लीजिए। तो इससे आपको क्या क्लियर हुआ कि
जो रेंज होगा वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी और उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 से 1 के बीच में होगी। हैंस रेंज इज एनी पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1 विद 0 इंक्लूडेड। तो आपकी रेंज में क्या होगा, 0 से लेकर के 1 तक के बीच के नंबर्स हुए जिसमें 0 भी क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो रेंज क्या हो जाएगी एफ की, 0 से लेकर के 1 तक।